تو ناظرین بات ہو رہی ہے وفاقی بجٹ کی، اس پر آپ کو بتائیں کہ کیا عوام دوست بجٹ ہوگا؟ وزیر اعظم سے 24 نیوز کے رپورٹر اویس کیانی کا سوال، آپ سب خوش ہوں گے کہ آج کے بجٹ ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے یہ جواب دیا ہے کہ آپ سب خوش ہو جائیں گے آج کے بجٹ سے۔ 24 نیوز کے رپورٹر اویس کیانی نے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ آج آنے والا بجٹ کیا عوام دوست ہوگا؟ اس پر وزیر اعظم کی جانب سے کیا جواب دیا گیا، آپ کو سنواتے ہیں۔ خان صاحب کیا عوام دوست بجٹ ہوگا؟ آج عوام دوست بجٹ ہوگا؟ سب خوش ہو گیا۔ خان صاحب کیا عوام دوست بجٹ ہوگا؟ آج عوام دوست بجٹ ہوگا؟ سب خوش ہو گیا۔ خان صاحب کیا عوام دوست بجٹ ہوگا؟ آج عوام دوست بجٹ ہوگا؟ سب خوش ہو گیا۔ اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اویس کیانی بتائیے گا مزید کیا کہا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے؟ دیکھیے جی، ہم نے آج جو ان کی کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے ہم نے ان سے سوال کیا خان صاحب سے، جو کہ ابھی وفاقی کابینہ کا اجلاس چیئر کر کے آ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا شارٹ سوال کہ کیا عوام دوست بجٹ ہوگا، تو اس پر خان صاحب رکے وزیر اعظم، اور وزیر اعظم نے رک کر یہ بات کی ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آج کابینہ اجلاس میں بھی کافی جو ہے اس بجٹ پر جو ہے بحث رہی ہے۔ 10% ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ تنخواہوں میں اور 10% ہی پینشنز میں جو ہے وہ اس طرح کا ہمیں جو ہے وزراء کچھ جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن کچھ وزراء نے سفارشات کی تھی کہ تنخواہوں اور پینشنز میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ جو موبائل جو ٹیکس ہے، سمز اور جو دیگر جو معاملات ہیں، اس پر بھی جو ہے ٹیکس جو ہے وہ زیادہ بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور اب جو پارلیمانی جو کمیٹی کا جو اجلاس ہے، اس کا جو وزیر اعظم چیئر کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اتحادی اور جو ناراض ایم این ایز ہیں وہ اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے شوکت ترین جو ہے آج 4 بجے اجلاس میں جو ہے فائنانس بل جو ہے وہ پیش کریں گے۔ وزیر اعظم کافی متحرک ہیں، اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پوری عوام کے لیے ایک خوشخبری ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں بہت ہی ایک واضح انداز میں کہا ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے۔ تو اس بجٹ سے کون کتنا خوش ہوگا یہ تو آج شام کو ہی پتہ چل جائے، لیکن اس وقت وزیر اعظم عمران خان جو ہے اتحادیوں اور حکومتی ارکان قومی اسمبلی کی میٹنگ چیئر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، اپنے ناظرین کو ایک بار سے پھر سنائیں گے کہ وزیر اعظم کی جانب سے کیا کہا گیا۔ خان صاحب کیا عوام دوست بجٹ ہوگا؟ آج عوام دوست بجٹ ہوگا؟ سب خوش ہو گیا۔ خان صاحب کیا عوام دوست بجٹ ہوگا؟ آج عوام دوست بجٹ ہوگا؟ سب خوش ہو گیا۔ خان صاحب کیا عوام دوست بجٹ ہوگا؟ آج عوام دوست بجٹ ہوگا؟ سب خوش ہو گیا۔ خان صاحب کیا عوام دوست بجٹ ہوگا؟ آج عوام دوست بجٹ ہوگا؟ سب خوش ہو گیا۔ اویس کیانی، جواب سے تو کافی پراعتماد لگ رہے ہیں وزیر اعظم، باڈی لینگویج کیسی تھی؟ کیا واقعی عوام دوست بجٹ آنے والا ہے؟ کوئی بڑی خبر آنے والی ہے؟ دیکھیں، عمران خان جب یہاں پر پارلیمنٹ پہنچے کابینہ کے 2 گھنٹوں کے اجلاس کر کے، تو اس وقت 24 نیوز نے جب ان کو شارٹ سوال فلوٹ کیا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جو سیکیورٹی کے جو ارینجمنٹس ہیں وہ کافی اسٹرکٹ یہاں پر ہوتے ہیں، اور وہ آگے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو ہم نے جیسے ہی فلوٹ کیا کوشچن، 2 دفعہ کوشچن فلوٹ کیا، تو عمران خان جو ہیں وہ رکے ہیں، اور بہت ہی ایک پراعتماد طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے۔ انہوں نے اشارہ کر کے، اپنے انگلی کا بھی اشارہ کر کے کہا کہ ایک بہت زبردست پیکیج لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے ہے کہ جو گروپس بنے ہوئے تھے اتحادیوں کے، اور جو اسپیشلی طور پر جو حکومت کے اپنے جہانگیر ترین کے راجہ ریاض لوگ بھی یہاں پر یہ موجود ہیں۔ کاف لیگ کے جو منسٹر تھے طارق بشیر چیمہ، انہوں نے آج وفاقی کابینہ کی اجلاس میں شرکت نہیں کی، لیکن ایک جو ایم این اے ہیں ان کی وہ اس وقت یہاں پر ہی موجود ہیں اس اجلاس میں۔ لیکن اب جو تحفظات ہیں، جو ایم این ایز کے جو اپنے حلقوں کے جو معاملات ہیں، جو کہ عوام جو ان سے ڈیمانڈ کرتی ہے، جس میں بجلی ہے، اشیاء خود و نوش کی قیمتیں ہیں، وہ ایم این ایز جو ہیں آپ وزیر اعظم کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور آج جو فائنانس بل 2021 کی جو منظوری دی گئی ہے کابینہ کے اجلاس کی تجویز کی، وہ آ رہے ہیں، اور اس کی منظوری کے بعد آج 4 ترین پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، آپ ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ایک بار پھر سے آپ کو سنوائیں گے کہ وزیر اعظم کی جانب سے کیا کہا گیا۔ خان صاحب کیا عوام دوست بجٹ ہوگا؟ آج عوام دوست بجٹ ہوگا؟ سب خوش ہو گیا۔ خان صاحب کیا عوام دوست بجٹ ہوگا؟ آج عوام دوست بجٹ ہوگا؟ سب خوش ہو گیا۔ خان صاحب کیا عوام دوست بجٹ ہوگا؟ آج عوام دوست بجٹ ہوگا؟ سب خوش ہو گیا۔ خان صاحب کیا عوام دوست بجٹ ہوگا؟ آج
आवाम दोस्त बजट होगा। सब खुश हो गया। खान साहब क्या आवाम दोस्त बजट होगा आज? अवैस कियानी, बताइएगा कि आज दिन भर की एक्टिविटीज़ क्या रही हैं? हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से किसी ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म से, और इजलास में कौन कौन शरीक हुआ? देखिए, पहले आज वफाकी काबीना का जो इजलास जो इस बजट की मंजूरी के लिए जो बुलाया गया था, उसके 2 दफ़ा टाइमिंग चेंज हुई है। एक तो 11 बजे, उसके बाद 11:30 बजे, और फिर 12 बजे जो इजलास शुरू हुआ वो फिर 2 बजे तक 2 घंटे मुसलसल जारी रहा। उसमें जितनी भी जो तजावीज़ थी जो बजट के हवाले से, वो PSDP की, और जितना भी जो हेड्स थे, वो जो टैक्स महसूलात थी, और तमाम तर जो मामलात थे वो फाइनेंस जो इनकी जो माशी टीम है उन्होंने सामने रखे। लेकिन हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उसमें भी वज़रा ने जो है कुछ एतराज़ात किए और कुछ तजावीज़ भी दी। उस पर वज़ीर आज़म ने खुद भी जो है काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो इंटरनेट के मामले पर जो टैक्स बढ़ाने की जो बात थी उसकी मुखालफत खुद इमरान खान ने की है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकारी मुलाजमीन और पेंशन का जो मुलाजमीन के साथ जो वादे हुए थे, वो वादे जो है वफा होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हमारे ज़राए वफाकी काबीना के ये बता रहे हैं कि सिर्फ 10% जो है वो इजाफा किया जा रहा है। तो उसके बाद जो वज़रा उसके बाद डायरेक्ट जो है इजलास के 2 बजे के बाद जो है वो पार्लियामेंट उनको पहुंचने की हदायत की। जब वो यहाँ पर आए, अपने चैम्बर्स में गए, तो हमारी उन चैम्बर्स में जाके हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो जो वज़रा हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जी होगी ये चीज़, कोई अच्छी चीज़ आ रही है, लेकिन उनके चेहरों से जो है कोई खुशी नुमाया नहीं हो रही थी। वो चेहरे उनके ठीक है अवैस कियानी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को फिर से सुनवाते हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से क्या कहा गया है आज के बजट के हवाले से। आवाम दोस्त खान साहब क्या आवाम दोस्त बजट होगा आज? आवाम दोस्त बजट होगा। सब खुश हो गया। खान साहब क्या आवाम दोस्त बजट होगा आज? आवाम दोस्त आपको बताएं कि वफाकी काबीना के इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा काबीना के इजलास में शरीक ना हुए। वज़ीर आज़म ने तारिक बशीर चीमा के ना आने की वजूहात भी पूछी। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी, से इजलास में तारिक बशीर चीमा गैर हाजिर रहे, क्या वजूहात सामने आई हैं, क्यों शिरकत नहीं की उन्होंने? देखिए, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आज वफाकी काबीना के इजलास जो है तारिक बशीर चीमा ने शिरकत नहीं की। जब हमने इसकी तफसीलात जानी तो हमें पता चला कि वो यहाँ पर इस्लामाबाद में ही है, उन्होंने जुम्मे की नमाज अदा की है, और उसके बाद हमारी कुछ और MNA से भी जो है काफ लीग की बात हुई है। लेकिन तारिक बशीर चीमा जो कि वफाकी काबीना का जो मंगल के रोज़ जो इजलास जो हुआ था, उसमें तारिक बशीर चीमा ने साफ हुकूमत को और वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा था कि आपने जो हमारे साथ यानी कि काफ लीग के साथ जो वादे किए थे वो वफा नहीं हुए, और हम उस वक्त तक कानून साजी में आपके साथ नहीं बैठेंगे जब तक आप हमारे साथ किए हुए वादा जो है वो नहीं पूरे किए करेंगे। इसमें तरक्याती बजट के साथ साथ और भी जो है जो सरबराह लेवल काफ लीग के जो सरबराह थे उनके साथ जो वादे हुए थे, जो मायदा हुआ था। अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की सदारत में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अरकान की मुशावरत से बजट सेशन के लिए PPP की हिकमत अमली पर अहम फैसले किए गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली को हिदायत भी जारी की हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो की सदारत में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। इस पर बात करेंगे उस्मान जावेद से। उस्मान जावेद, इजलास का मजीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस में पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अरकान के साथ मुशावरत से बजट सेशन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली पर अहम फैसले किए जा रहे हैं। इमरान जो भरपूर मुखालफत का फैसला किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस बजट के हवाले से, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पीपल्स पार्टी अरकान को असम्बली जो अरकान असम्बली है उनको हदायत दे दी हैं, और पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में कोरम पूरा न होने के बावजूद जबरदस्ती कानून साजी की भी मजम्मत की गई और इसको आमराना रवैया करार दिया गया, और पीपल्स पार्टी ने इन ओछे हथकंडों के जरिए कानून साजी को रोकने के मामले पर भी तफसीली गौर व फिक्र किया गया। जी उस्मान जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि कासिम सूरी पर अपोजिशन मिलकर हिकमत अमली बना रही है। बजट सामने आने दें, देखते हैं कि अवाम दोस्त है या नहीं।
بجٹ کے حوالے سے سر آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑے دعوے کر رہی ہے؟ سر جو عدم اعتماد کی تحریک کل آئی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ مشاورت سر کیا کامیاب ہو جائے گی وہ؟ میں نے کہا مشاورت ہو گئی، مشاورت کے بعد جمع کرا کے بعد میں مشاورت کریں گے، پہلے نہیں؟ کہ اس کو کس طرح کرنا ہے مسٹر سر مشترکہ پارلیمنٹ پارٹی بھی ہوگی اپوزیشن کی؟ جی آپ دیکھیں گے۔ دوسری جانب وفاقی بجٹ اور اپوزیشن کا احتجاج۔ اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں احتجاج کے لیے پوسٹرز تیار کر لیے۔ احتجاجی پوسٹرز کی نگرانی مرتضیٰ جاوید عباسی، شیزا فاطمہ کر رہی ہیں۔ وزیر خزانہ کے بجٹ ایوان میں پیش کرتے ہی احتجاج شروع کر دیا جائے گا، جس کے لیے اپوزیشن تیار ہے۔ احتجاجی پوسٹرز پر حکومت مخالف نعرے لکھے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایک جانب تو اب سے کچھ ہی دیر بعد وفاقی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اپوزیشن بھی متحرک ہے۔ اپوزیشن نے قومی اسمبلی میں احتجاج کے لیے پوسٹرز تیار کر لیے ہیں، جس میں حکومت مخالف نعرے درج کیے گئے ہیں۔ ممبر قومی اسمبلی راجہ ریاض نے کہا کہ جہانگیر ترین گروپ مالی سال کے بجٹ کی منظوری میں حکومت کا ساتھ دے گا۔ بجٹ سیشن سے قبل حکومتی اور پارٹی اجلاس میں تمام ارکان کو شرکت کی ہدایت کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق عدالتی فیصلے اور جہانگیر ترین کو ریلیف کے بعد ترین گروپ نے موقف بتلا۔ کرپشن نہیں کی ہے۔ جہانگیر ترین ہمارا پہلے دن سے موقف تھا کہ ہم طریق انصاف میں ہیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان ہمارے لیڈر ہیں، اور ہم نے پہلے دن سے ایک ہی چیز کی تھی کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ ہمیں آج انصاف ملا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر انصاف کو آپ این آر او کہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہے۔ ہم اپوزیشن سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس بار غیر روایتی اپوزیشن کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اپنی بجٹ تجاویز لائے، شور شرابہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو سنجیدگی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک عوام دوست بجٹ ہے، اور جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پی ایس ڈی پی اناؤنس ہونے جا رہا ہے۔ گروتھ ریٹ جو ہماری ہے وہ اس وقت تقریباً آپ سمجھیے کہ 4%، اس وقت تقریباً آپ سمجھیے کہ 4% کے اوپر تھی اس سال، اور اس سال اگلے میں اس کا جو ٹارگٹ ہے اس کو کافی بڑھا دیا گیا ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آج کا بجٹ عوام دوست ہوگا اور سب خوش ہوں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سلیم مانڈوی والا صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وزیراعظم کافی پُر اعتماد ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کا جو بجٹ ہے وہ عوام دوست ہوگا، سب خوش ہوں گے۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ پہلے تو پرائم منسٹر یہ بجٹ پڑھ لیں۔ انہوں نے ابھی تک بجٹ نہیں پڑھا میرا خیال۔ پہلے وہ بجٹ پڑھ لیں اور سمجھ لیں۔ اگر ان کو سمجھ آ گئی کہ بجٹ میں کیا ہے تو پھر وہ یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے جو یہ دے رہے ہیں۔ سلیم مانڈوی والا صاحب، لیکن بار بار حکومتی نمائندوں کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عوام دوست ہے اور جو ہے کافی ریلیف دیا جائے گا عوام کو۔ میں تو دیکھیں آپ سے بڑی سمپل بات کروں گا کہ اگر ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ بجٹ میں کیا ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ میرا نہیں خیال کہ پرائم منسٹر کو پتہ ہے کہ بجٹ میں کیا ہے اور گورنمنٹ کیا دینے جا رہی ہے، کیا لوگوں کو ریلیف ملے گا نہیں ملے گا۔ ان کو خود کچھ نہیں پتا، ان کو خود کوئی کسی کی چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ باتیں کرنا کہ جی بڑا اچھا بجٹ آ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو خوش کرنے والی بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ سر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف سے ریلیف ملا ہے وہ امریکہ کی جانب سے ملا ہے، آپ کیا کہیں گے اس خبر کے حوالے سے؟ سلیم مانڈوی والا سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ہمارے رپورٹر اویس کیانی نے وزیراعظم سے گفتگو میں پوچھا کہ آج کا جو بجٹ ہے وہ عوام دشمن ہے یا عوام دوست، جس پر وزیراعظم کافی پر اعتماد نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ آج کے بجٹ سے خوش ہوں گے، سب خوش ہوں گے اور آج کا جو بجٹ ہے وہ عوام دوست بجٹ ہوگا۔ یہ گفتگو کی گئی وزیراعظم کی جانب سے۔ ہمارے رپورٹر اویس کیانی کی جانب سے یہ سوال کیا گیا اور وزیراعظم کی جانب سے جواب دیا گیا کہ آج کے بجٹ سے سب خوش ہو جائیں گے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حوالے سے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بجٹ کے بعد سب خوش ہوں گے۔
24 न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस कियानी हैं, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बजट के हवाले से सवाल किया कि आज का जो बजट है वो अवाम दोस्त बजट होगा, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म काफ़ी पुरएतमाद नजर आए और उनका कहना था कि आप सब खुश होंगे। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं, शाज़िया मरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कि अभी किसी भी हरकत से हैरत नहीं हो रही है, क्योंकि कल जो नेशनल असेंबली में हुआ वो काम, ऐसे बिल भी लाए गए जो अभी तक कमेटी में पड़े हैं, कमेटी ने फैसला नहीं दिया। मैरीटाइम का बिल डिफर हुआ था, जो पावर कमेटी का नेपरा का बिल था वो IMF की डिक्टेशन थी। और अगर आपको मैं इसमें भी बता दूं उन्होंने क्या किया, मेरे पास वो बिल भी है और पावर कमेटी की कल 2 बजे मीटिंग थी। पावर कमेटी की 2 बजे की मीटिंग में एजेंडा पे वो बिल था, और क्योंकि जो वजीर मौसूफ है वो 2 कमेटीज में नहीं आए, 2 मीटिंग्स में, लिहाजा मेंबरान ने ये एतराज़ किया कि हम गवर्नमेंट का कोई बिल नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम लोड शेडिंग डिस्कस करेंगे। तो वो 2 बिल्स थे जो एजेंडा पे आए और वो पड़े रहे, उनका कोई फैसला नहीं हुआ। हम देखते हैं कि एजेंडा पर वो बिल मौजूद है, शायद इनको लगा कि वहां से ये जबरदस्ती से पास करा लेंगे, लेकिन पता इनको भी नहीं था कि गवर्नमेंट के अपने मेंबर्स लोड शेडिंग पर वहां पे एहतजाज करेंगे, तो वो इनकी प्लानिंग गलत हो गई। लेकिन एक्सपोज ये इसी तरह हुए कि इन्होंने वहां पहले ही बिल रखा हुआ था और प्लानिंग ये थी कि 2 बजे पावर की मीटिंग, 4 बजे सेशन, वहां से बिल नहीं हुआ। बावजूद इसके ये बिल आया भी, मतलब एजेंडा पे था तो, और हमाद अजहर साहब ने इस बिल को पास करवाया जबरदस्ती। अगेन ये गैर आईनी कदम था, आपकी जो ये रूल्स है इसके बिल्कुल खिलाफ था। मैंने इस पर शोर भी किया, मैंने कहा जी ये वो बिल है जो आज एजेंडा पे था। मुझे बहुत इधर उधर तो इस्लामाबाद से आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। नहीं बिगाड़ दी है कि किसी भी जी शऊर और जमहूरियत पसंद इंसान को आज ये सब देखकर तकलीफ हो रही होगी, कोई खुश नहीं हो रहा होगा कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। मैं क्योंकि इस वक्त बजट का भी टाइम है, ये मैं ज्यादतियों की बात कर रही थी, तो मेरे साथ और मेंबर है यहाँ पर सिकंदर, और क्योंकि मैंने खास इसलिए जरूर तशरीफ ली, सिंध के साथ होने वाली एक बहुत संगीन ज्यादती जो है वो इनके हलके में हो रही है। वो जो रोड है जिसका जिक्र पहले भी आपके साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने किया, मुर्तजा वहाब साहब ने किया, जामशोरो 7 जो रोड का एक टुकड़ा है, जिसके लिए 2015 और 15 में शुरू हुई बात और 17 में पेमेंट आपने की दिसंबर। उस वक्त की हुकूमत ने भी कुछ अच्छा सलूक नहीं किया, इस हुकूमत ने तो सोने पे सुहागा हो गया है। दिसंबर 2017 को 7 अरब रुपए जो कि उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि 50-50 का बेसिस होगा, आप ये देंगे तो काम होगा। पहले तो उन्होंने कहा नहीं आप पहले दें फिर काम होगा, तो ये शर्त रख ली, तो वो पैसे हुकूमत ने दे दिए। ये हमारे नुमाइंदे बारहा पिछले बजट में भी इन्होंने उस वक्त मिनिस्टर कम्युनिकेशन को कहा, इन्होंने ये कम गो हैं, असेंबली में कम बोलते हैं, लेकिन इस इशू पे इन्होंने बाकायदा एहतजाज किया, आपको याद होगा। हालत यह है कि आज तक वो रोड नहीं बन पाया और उस पर भी जो है वो बयानबाजी हो रही है, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल रही। NHA के रोड्स, ये हमें कहा जाता है कि बताएं कितने मोटरवे बनाए, आप मुझे बताएं कि किस सूबे ने कितने मोटरवे बनाए। अलावा NHA के क्या सूबे मोटरवे बना रहे हैं? अगर बना रहे हैं तो फिर सिंध से ये सवाल बनता है, और अगर नहीं बना रहे तो फिर आप सिंध के साथ ज्यादती कर रहे हैं और ये ताना मार रहे हैं सिंध को, सिर्फ इसलिए कि आपको बुग़्ज़ है, या आपको बुग़्ज़ सिंध की आवाम से है या पीपल्स पार्टी का बुग़्ज़ है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि पार्टी नुमाइंदा है सिंध की आवाम की, तो अगर आप नुमाइंदे को गाली देंगे तो आप उसके पीछे खड़े हुए अवाम को भी उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से आप उसके नुमाइंदों को देख रहे हैं। तो ये जुल्म सितम है। इसके अलावा
बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सेंसस का एक टॉपिक है, वो भी आपके सामने हमने रखा है और उसके हवाले से आर्टिकल 157(4) है, जिसके तहत चीफ मिनिस्टर सिंध ने, क्योंकि सीसीआई ने एक गलत फैसला दिया, एक कंट्रोवर्शियल फ्रॉड सेंसस को अप्रूव किया, उन जमातों ने जिन्होंने बड़े वावेला मचाया था कि ये सेंसस कबूल नहीं है, उन्होंने भी पता नहीं किस कीमत पे अपना वो फैसला बदल दिया, ये हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया और उन्होंने ठप्पा लगा दिया एक कंट्रोवर्शियल, एक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट को, और उस सेंसस पर हमारा एतराज़ है, सिंध का एतराज़ है। अगर आप इंटरनेशनल एजेंसीज के जो सेंसस के ब्लॉक्स हैं उनको देखें और जो हमारे इस सीसीआई के डिसीजन के अंदर जो नंबर्स दिए उनको देखें तो उसमें बहुत फ़र्क है, और वो फ़र्क जो है वो बहुत नंबर्स का है। अगर आपके पास सेंसस के नंबर्स ही गलत होंगे, अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा कि मैंने कितने लोगों के लिए डेवलपमेंट करनी है, कितने लोगों के लिए सहूलत फराहम करनी है, कितने लोगों की फलाह बहबूद के मंसूबे बनाने हैं, तो फिर लाजमी है आपकी कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। झूठ पर मबनी सेंसस सीसीआई ने पास किया, जिसको सिंध हुकूमत ने रिजेक्ट किया। लिहाजा इसलिए जब ये जो है मेजॉरिटी के बलबूते पे फैसला में हुआ, तो उसके बाद सिंध हुकूमत ने आईनी रास्ता इख्तियार किया। आर्टिकल 157(4) के तहत 154(7) आर्टिकल 154(7) के तहत उन्होंने रुजू किया है पार्लियामेंट से कि हम जॉइंट सिटिंग के ज़रिए इस इशू को यहाँ लाना चाहते हैं और ये हमारा राइट है। एक ये अब आ जाए जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखें ये पढ़ी लिखी और सुलझी हुई अप्रोच होती है अपने मसाइल पर बात करने की। हमें कोई शौक़ नहीं है किसी का गिरबान पकड़ने का, किसी को अलग अलग किस्म की गाली देने का, किसी को मुक्का मारने का, किसी को थप्पड़ मारने का, ये हमें शौक़ नहीं है। हम हक पे हैं, लिहाजा हम अपनी बात को दलाइल से और आईनी रेफरेंसेस से बयान करेंगे। ये एक और बात है पानी की। देखिए पानी की किल्लत है और बहुत अफसोस है कि पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने इसको तासुब का रंग देने की पूरी कोशिश की है। पानी का मसला कभी भी मेरी नज़र में वो वैसे ही इतना संगीन मसला होता है, उसमें कभी भी रंग, नस्ल, सूबा नहीं आना चाहिए। जो असल हकीकत है वो है पानी की तकसीम। 1991 में एक वाटर अकॉर्ड साइन होता है, पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन होती है, बावजूद इसके सीसीआई एक फोरम है आईनी, उसकी तरफ से अप्रूव होता है, हमें वो कबूल है। अब उसके पैरा 2 के अंदर पानी की एलोकेशंस दर्ज हैं। हमारा सिर्फ सिंपल सादा मुतालबा है, कोई चांद तारे नहीं चाहिए हमें, सिर्फ पानी की एलोकेशन उस पैरा में दर्ज नंबर्स के हिसाब से कीजिए। 10 डेलीज एक फॉर्मेट था, उस पे ये चलता है काम और उसी के तरीके से हमें पानी चाहिए। और जो एक प्रिंसिपल सेट था कि शॉर्टेज में लिंक कनाल्स को नहीं खोला जाएगा, ये फ्लड कनाल्स कहलाएंगी, क्योंकि ये रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची में बिलावल हाउस के मीडिया सेल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक तमाम अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। नुमाइंदा 24 न्यूज़ सुहेल शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए ये बिलावल हाउस का मीडिया सेल है, इसमें जो है वो अचानक आग लगी है और इसके हवाले से जब हमारी बात हुई है फायर ब्रिगेड हुकाम से, तो उनका कहना है कि आग जो है वो बिलावल हाउस की मीडिया सेल में से जब हमारी बात हुई है फायर ब्रिगेड हुकाम से, तो उनका कहना है कि आग जो है वो बिलावल हाउस की मीडिया सेल में रखे हुए कुछ सामान में लगी थी, जिसने देखते ही देखते जो है वो पूरी मीडिया सेल को अपनी लपेट में लिया है। इस मौके पर हमारी बिलावल हाउस के तर्जुमान है, उनसे बात हुई है, तो उनका कहना यह है कि तमाम अमले को जो है वो बाहर निकाल लिया गया था, कोई जो है वो अमले का शख्स यहाँ मौजूद नहीं था। ताहम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी हैं और इस आग को जो है वो काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। जी सुहेल शबीर, बहुत शुक्रिया आपका से याद कर लिए हैं।
तैयारियों का मजीद अहवाल जानेंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा, अपोजिशन की तैयारियां जारी हैं, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल मदीहा, वफाकी बजट के लिए अपोजिशन ने एहतजाज की हिकमत अमली तैयार कर ली है। अपोजिशन ने कौमी असम्बली में एहतजाज के लिए पोस्टर्स भी तैयार कर लिए हैं और पोस्टर्स पर जैसे ही वजीर खजाना बजट ईवान में पेश करेंगे तो एहतजाजी पोस्टर्स पर जो हुकूमत के मुखालिफ अल्काबात दर्ज है उनको अवेदा कर दिया जाएगा। जो पोस्टर्स तैयार किए गए उनमें महंगाई खान, कृपस्तान, महंगाईस्तान और जो दीगर लूट के खा गया पाकिस्तान, इमरान खान और इस तरह के जो है वो मुख्तलिफ नारे जो है वो उन पोस्टर्स पर दर्ज किए गए हैं। और जैसे ही वजीर खजाना शौकत तरीन ईवान में बजट पेश करेंगे तो हुकूमत की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा और इन पोस्टर्स को अपोजिशन जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो ईवान में लहराएंगे। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। पर एक्शन जरूर होगा। दीगर अगर कोई लोग बेगुनाह हैं, कोई दीगर गिरफ्तार हुए हैं तो जाहिर है कानून के मुताबिक उन सबको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जिन लोगों के लिए सबूत हैं, जो लोग मुलविस हैं, उनको किसी भी तरह नहीं छोड़ा जाएगा। अब इस चीज़ को बुनियाद बनाकर किया क्या जा रहा है कि एक तरफ तो वही लोग थे जो इस तरह की तस्वीर उठाए हुए थे, पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे। अब एक और तरफ से क्या किया गया कि जी फिर वही जनूबी सूबे की बात की गई और वही जिसका ताल्लुक जिनापुर से है, जिसको पहले वो खुद भी वजाहत करके उस कायद से ला ताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, अब उसको जोड़ा जा रहा है। इधर से यहाँ से भी कुछ लोग जिन्होंने उनके हक में नारे लगाए, तो ऐसे लोगों को। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।